studied about concave mirrors and image formation by concave mirrors in our last class. And let's quickly, I hope you have revised, because if you don't revise, then children, sorry, if you don't revise, then things will get a little bit difficult from here. So, sorry, one second, give me a minute. Okay, so we will start with our quick one, very fast revision, concave mirror. And concave mirrors, image formation, where all did we place our object? Can you tell me the first one? The first one was between? So between pole and focus. Focus and pole. Focus and pole. And where did we get the image? This is the only case where you get what? You get a erect, magnified. Yeah, magnified. And what else? Virtual. Okay, virtual. This is the only case. Okay, and this image will be behind the mirror. I won't write for all. Behind the mirror. Okay. Understood? Application. Application, vanity mirror, shaving mirror, dentist mirror, as well as the mirrors that you see on the spectacle shop, spec shops, the mirrors that you see. Those are all concave mirror. And in concave mirror, this is the only case where you will get a virtual, erect, magnified. ऐसा और कभी नहीं आएगा, एक ही आएगा. Second one was what? At focus. Image is formed at infinity. कुछ नहीं पड़ेगा इसका मतलब. Then highly enlarged or highly magnified. और क्या था? Come on. Inverted and real. What is the characteristic of a real image? Real image कैसे पता चलता है? सोचो. Inverted होता है. So inverted. Real image is an image which is formed by the actual intersection of rays. Actual intersection. ठीक है? Inverted होता है वो. That's not the convincing answer. The convincing answer is actual intersection of rays. चलो, third is just the opposite. At infinity, where is the image formed? 2 का उल्टा है, करो ना. Sir, at infinity it forms at focus. At focus. कैसा होगा? Highly magnified. यहाँ होगा highly diminished. Highly diminished. What will be the nature? Inverted and real. हो गया. Number 4. At C. At center of curvature. कहाँ बनता है image? याद करो. Last class I asked Aryaman, लिख रहे हो? Sir, I have made a chart. और मैं chart को बना के भूल जाता हूँ. At C is at C. Same size. हाँ तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? एग्जाम में मैं बैठूंगा क्या साथ में? At C. Inverted and real. Then number 5. Between C and F. It's high time to do a PTM actually. Open PTM. PTM करना बहुत जरूरी है ना? साहब, ready? Open PTM. All parents together, all kids together. तभी ना बच्चा पढ़ेगा. Between C and F, beyond C. Beyond C. Beyond C. दर्शिका, इस क्लास का वीडियो, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, this is just a recollection of our last class. इसका वीडियो YouTube में है. So the same kids, they were there. That day they were very attentive. Now in 8 days they have not studied anything. So today they are all मौन व्रत. Okay. So beyond C. Size कैसा होगा? हाँ पढ़ा था लेकिन भूल गया. Size कैसा होगा between C and F? Sir, it will be enlarged. Smaller than object. Magnified. नहीं, between C and F. Between C and magnified, F. तो magnified होएगा ना? Enlarged. हाँ, magnified. Enlarged, inverted, real. और last वाला क्या होगा? इसका उल्टा. So we will have beyond C. Beyond C होगा तो image कहाँ पे होगा? Between C and F. निवेश भाई, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? Smaller than object. सर ये सब पढ़ लेंगे टेस्ट के सामने. Inverted and real. And apart from that, we also studied that the focal length is always half the radius of curvature. ठीक है? I had asked you all to go through Lakshmi Singh's. We also follow a textbook which is Lakshmi Singh. Darshika, I'll tell you all these later. So we study from that textbook, and I had asked you to go through the. How many of you could actually go to the MCQs of Lakshmi Singh? Because right after the section that I ended in last class,
there is a section on Lakshmi Singh which actually talks about MCQ, short answer question. So your silence gives me the answer. Excellent children. Day by day we are keeping going on procrastinating. So slowly, you know, when you in cricket, when you start chasing 289, it shows balls remaining 300. तब आपको लगता है आराम से बैट करते हैं ना, थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है पता है, धीरे धीरे आ जाता है 270 डिलीवरीज, 285 स्कोर. थोड़ा asking rate above 6 and suddenly one wicket falls, you start biting your nails. होगा तो हो जाएगा तो, और एक विकेट गिर गया, then Mr. Rajiv Rastogi, big reason to worry. चलिए, topic for today, we're going to study sign convention. Pay utmost attention, which you all do pay in the class. You all don't study between two classes. That's a different story. Sign convention, and sign convention is very, very important to solve numericals, image formation numericals. And this is what is going to come in your exam. Even if you go for other FITG and other exams, यही सब आता है. Image formation numericals, very, very important. And double red line लगा लो, बहुत important है. ठीक है, ready? ये पूरा बेस होता है certain assumptions के ऊपर, assumptions. और let's see what are the assumptions. आइए, इसको जानने के लिए सबसे पहले we would analyze the Cartesian coordinate system. ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, अब छोटी मोटी बातें. अगर मैं इस तरफ जाऊं तो कहां जा रहा हूं? पॉजिटिव की तरफ. अगर मैं इधर जाऊं तो निगेटिव की तरफ. अगर मैं यहां जाऊं पॉजिटिव है, अगर मैं यहां जाऊं तो निगेटिव है. शायद इतनी चीजें तो आपको आती है. एनीवन डाउट्स आउट हियर? ठीक है, Darshika, video and audio is clear to you. You're able to hear, see, no delay, no lag, right? Fine. ठीक है. और अभी हम जो बातें करेंगे बेटा, ये सब कुछ बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए. कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा मिरर जो केव की तरह दिखे, जहां आदमी बैठ के सुकून से बैठ सकता है. यही तो है कॉनकेव मिरर, जहां एक आदमी बैठ सकता है. सो लेट्स टेक आवर कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर को हम बिठाएंगे बिल्कुल ओरिजिन पे बिठाएंगे, ऐसे. ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन पे बिठाएंगे. तो मतलब कि उसका पोल ओरिजिन पे होगा. हाँ, पोल ही ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पे. वाह, शाबाश, अगला नोबेल प्राइज तुम्हारे नाम पे. जो पोल है वही ओरिजिन है. ठीक है ना, क्लियर? तो हमें पोल मिल चुका है, ये हो गया P. ओके, अब ये कॉनकेव मिरर है बेटा, तो इसका फोकस किधर होगा? इसका फोकस कुछ यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, पहला चीज बताइए, फोकल लेंथ क्या होता है? व्हाट इज फोकल लेंथ? इतना तो बोल ही सकते हो ना. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि ये देखो बेटा, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आप कैसे मेजर करोगे? आप पोल से फोकस तक चलोगे. यस और नो? यू विल गो टिल हियर. डू यू एग्री? व्हिच डायरेक्शन डिड यू गो टू मेजर द डिस्टेंस? व्हिच डायरेक्शन डिड यू गो? लेफ्ट साइड और राइट साइड? नेगेटिव गया ना. नेगेटिव गए. फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. सर मैं ऐसा भी तो हो सकता था. आई डोंट एग्री विथ यू. मैं इस साइड से अगर मेजर करता तो इस साइड से मेजर नहीं करते हैं. उसके लिए सबसे पहले एक और लाइन लिखिए, और वो लाइन याद रहे. ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. पोल से ही नापोगे, कहीं और से नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. समझ में आया भाई साहब? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. तो सबसे पहले हमें क्या मिला? हमारा फोकल लेंथ जो होता है ना, एफ इज ऑलवेज निगेटिव. एफ कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एनी डाउट सो फार? नो डाउट, वेरी गुड. अब आता है नंबर 2, ऑब्जेक्ट हाइट.
ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, यहाँ पे एक और अजम्पशन है, ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट ही रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट को टेढ़ा नहीं रखता है। इफ आई वांट टू शो यू अ वाटर बॉटल, मैं ऐसे दिखाऊंगा या ऐसे दिखाऊंगा आपको? जनरली इट सेज ऐसे दिखाते हैं, सीधा दिखाते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है और सीधा रखा जाता है। तो मान लो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? नहीं, इसको अलग कलर करते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे सर आई गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सॉरी, वन मिनट बच्चा। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसे मेजर कर रहे हो जरा देखो तो। ऑब्जेक्ट की हाइट को आप मेजर करोगे डेटम प्रिंसिपल एक्सिस से यहां तक मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर की तरफ मेजर करोगे। सो ऑब्जेक्ट हाइट इज रिटन एज योर विश। सम बुक्स राइट इट एज HO, सम बुक्स राइट इट एज H1, जो आपको लिखना है। यू कैन राइट इट एज HO or H1, whatever it is, and this will always be positive because you are measuring it from the principal axis to the top. आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हुआ? This much is clear? अच्छा, ऑब्जेक्ट का एक और चीज होता है, इसको 2-1 पकड़ लो और 2-2। ऑब्जेक्ट का दूसरा चीज व्हाट वी गेट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। So object distance will again be measured from where? It will be measured from the pole. और देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे आओगे? You will be coming something like this. In order to measure object distance, आप ऐसे आओगे, ठीक है? So let's say this is object distance, this is focal length. यहाँ पे लिख लेते हैं F is negative. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से लिखते हैं हम, U। इसका भी टेक्निक बता देंगे कैसे याद रखने का, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। Object distance is denoted by U. You cannot take anything else. It's always U, U, U. Object distance is U. ठीक है? नया नया क्या क्या चीज मिला भाई साहब? एक F मिल गया, एक HO मिल गया, एक U मिल गया हमें। None, sir? Okay. Now comes number 3. 3 पे हम बात करेंगे, 3-1 पे इमेज हाइट। इमेज हाइट को हम डिनोट करते हैं HI और H2 से, जो आपकी मर्जी। HI और H2. I would rather suggest you do it with HI because that nullifies the confusion. HO मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और HI मतलब इमेज की हाइट, ठीक है? नाउ हमारे इमेज दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमारा इमेज इरेक्ट हो सकता है या फिर इन्वर्टेड हो सकता है। अगर इरेक्ट हुआ तो फिर HI कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। देखो तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है? और इरेक्ट इमेज यू गेट ओनली वन, दैट लिपस्टिक और फाउंडेशन वाला इमेज जो आपको बताया था ना उस दिन, वो वाला। दिस इज अ इरेक्ट इमेज। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट कॉपी, अंडरस्टैंड, दिस इज अ इरेक्ट इमेज. Erect image means you will be measuring it again on the top side of y-axis, so you will get a positive figure. And if your image is inverted, then your HI will be negative. Any doubt बच्चा? Any doubt out here? यहां तक ये और एक चीज आपने सीखा, ठीक है दर्शिका बेटा? समझ में आ रहा है? इमेज हमारी कैसी हो सकती है बेटा? इमेज अगर इरेक्ट है तो हम इसे ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव हुआ। इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हम इसे पाताल लोक की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात, ठीक है? आर्यमान आज लिख रहा है कि नहीं ना? आज भी चार्ट रेडी है? सर लिखा है सर। वाह, छा गया मेरे लाल। अगला सवाल, इसके बाद आएंगे हम 3 के 2 पे। 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2 है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ये डिपेंड करेगा इमेज फॉर्म कहां पे हुआ। सेम साइड ऑफ मिरर, ज्यादातर we had 6 cases, out of 6 cases 5 cases में सेम साइड ऑफ मिरर में होता है। ओनली इन डेंटिस्ट एंड दैट ब्यूटी कॉम्पैक्ट मिरर it is formed behind mirror. behind mirror. अब पहले behind mirror को देखो बच्चा। behind mirror बोले तो कैसा होगा? यहां पे इमेज बनेगा
अब आप कैसे मेजर कर रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन पे मेजर कर रहे हो पोल से, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय V. You cannot use any other letter, it is V. V will be positive. And in all cases, majority of cases, you will all, this case will be what? This will be between F and P वाला केस। कौन सा? डेंटिस्ट वाला केस, ब्यूटी मिरर वाला केस, ये सबसे ज्यादा पूछता है। शेविंग मिरर वाला केस, ठीक है। और सेम साइड ऑफ द मिरर होगा तो V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आप सेम साइड में मेजर कर रहे हो। अब एक केस बताता हूं आपको, अगर आपका लिखना हो गया तो एक चीज देखो, लिखना हो गया? सो लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। क्या क्या हमने सीखा? फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, नंबर 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाईं तरफ ही रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखा जाता है। इमेज की हाइट डिपेंड करती है, अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। इमेज की डिस्टेंस डिपेंड करती है, अगर सेम साइड ऑफ मिरर में है, जो कि 5 केसेस में होता है, तो हमारी नेगेटिव हुई। और अगर बिहाइंड द मिरर हुआ, जो कि सिर्फ एक केस होता है, डेंटिस्ट, ब्यूटी कॉम्पैक्ट मिरर, शेविंग मिरर, तो वहां पे हमारी इमेज कैसी हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? ठीक है, आंसर कर दिया साहेब? किसे चैट मार रहा है क्या तू? नहीं, अच्छा, बीच में मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइप कर रहे हो करके। वायरलेस तो नहीं चल रहा है तुम्हारा और दिव्येश का? पैरेलली डिस्कॉर्ड खोल के बैठे रहोगे? तुम लोगों पे मैं 5 पैसे का भरोसा नहीं करता हूं। मुझे कुछ लगा, कुछ तो तुम लोगों के बीच में एक विंडो खुला है 100%। डिस्कॉर्ड खोला भी नहीं है सर। मैं दिल पे हाथ रख के मैंने भी नहीं सर, मैंने भी नहीं खोला है। हाँ, जो भी कहूंगा सत्य अभी तक बोलूंगा, नहीं कोर्ट खोला। की तरह सत्य, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। है ना? इतना क्लियर हुआ बच्चा, ऑल ऑफ यू? राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, फिर प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। सर 2 सेंट थोड़ा ऊपर चाहिए ना। चला तो अंधे की तरह सिर्फ कॉपी मत करो, समझ के लिखो। अगर समझ गए तो यू शुड बी ऑन योर ओन एबल टू ट्रेस दिस आउट। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसी के जैसा हमारा सब कुछ होगा। द मिरर इज प्लेस्ड इन सच अ वे that the pole coincides with the origin and all the measurements are done from the origin, all the measurements are done from the pole, and you measure for vertical distances, they are always measured from the datum or the ground level, which is your principal axis। इसके ऊपर, इसके नीचे। जानवी, ये आप लोग के स्कूल में ये चैप्टर शुरू हुआ है कि नहीं, या अभी भी आपका ब्रिजिंग चल रहा है? सर हो गया है, मतलब शुरू हो गया है। यही शुरू हुआ या इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुआ है? यही शुरू है। अच्छा, इससे पहले वाला जो लास्ट क्लास का था वो। अच्छा, कोई बात नहीं, तो फिर हम आगे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, डन दिवेश। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल कैसा लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड से सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखते हैं हम ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी में हमारा कैसा बनता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक मिरर बनाना है। एक चीज बता दूंगा तो आपका सारा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर को एक प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और टेढ़ा हुआ है, ठीक है, राइट। मार्किंग कर लेते हैं, ये बेटा हमारा P है, सॉरी, ये हमारा P है, ये हमारा F है, और ये हमारा C है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C का मतलब है ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इसकी इमेज हमेशा फॉर्म होगी बिटवीन C एंड F, यानी कि इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी ऐसे। मैं बाकी रे डायग्राम्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन आवर साइन कन्वेंशन, ठीक है। आओ लिखने की कोशिश करते हैं साइन कन्वेंशन के बेसिस पे। नंबर 1, फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, कोई सोचना ही नहीं है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है, और वो भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है,
ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, ये काम में आएगा। जानता हूँ थोड़ा तंग करता हूँ आप लोगों को, तो क्या करूँ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस कौन सा होगा, ये इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये u है, ये v है, ये hi है, ये ho है, ठीक है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कौन सी है, hi है। कैसा है, पॉजिटिव है सर, ठीक है, वेरी गुड। आइए नंबर 4, इमेज डिस्टेंस कैसा दिख रहा है आपको, इमेज डिस्टेंस इज v। ये भी निगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि इमेज इस साइड फॉर्म हुआ है, सेम साइड, सेम साइड। और नंबर 5, इमेज हाइट कैसी है, इमेज हाइट HEIGHT, इमेज हाइट है HI, जो कि है निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज फॉर्म। क्लियर यहां तक सब कुछ। सर ऑब्जेक्ट हाइट के लिए HO होगा कि HI? HO होगा, करेक्ट करेक्ट। सर की गलती ढूंढना बहुत बड़ी कला होती है बेटा, बहुत अच्छा। सर की गलती हमेशा ढूंढा करो, इसमें जीवन में उन्नति होती है। मैंने HO ही लिखा था, तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। HO अभी तक HI है। नीचे भी एक गलती है, सॉरी, HO है। गुड, थैंक यू, ठीक है। क्लियर हुआ। साइन कन्वेंशन को एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया। दर्शिका बेटा समझ में आया, साइन कन्वेंशन को एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया, ठीक है। एक और चीज हमें बात करनी होगी यहाँ पे, बिफोर वी मूव ऑन टू द मिरर फॉर्मूलाज एंड अदर थिंग। इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लीजिए पहले। आज के पढ़ाई को अगर साथ साथ नहीं पढ़े ना, पूरा भूल जाओगे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। मैक्सिमम चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स हियर बिकॉज दे डोंट रिवाइज प्रॉपर्ली। अभी तक जो पढ़ा, जस्ट साइन कन्वेंशन, टेल मी, टच योर हार्ट एंड से, कुछ मुश्किल लगा क्या? साइन कन्वेंशन, ओनली साइन कन्वेंशन, नथिंग हार्ड। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगले वीक इसी टाइम पे ना आप अपना चेहरा बनाओगे बिल्कुल मनसुख लाल की तरह, क्योंकि आप 8 दिन पढ़ोगे नहीं और फिर आपको याद ही नहीं आएगा, है ना। सर अभी तो मैच शुरू हुआ है सर, 2 ओवर तो देखने दीजिए, है ना। फिर धीरे धीरे जब ग्लव्स भेजेगा तब मारने से कैच जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और चीज हमें बात करनी है, अगर लिखना हो गया तो बोलिए, कैन आई गो अहेड, ठीक है। एक और चीज बात करेंगे अभी, मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे। मैग्निफिकेशन, आ जाओ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे ये हूं मैं, ये मेरा लाइफ साइज फोटो है, मान लो। भाई साहब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हूं मैं, बहुत अच्छा है सर, आप अच्छे हैं। और ये क्या हो गया? ये मेरा मैग्नीफाइड इमेज, समझ में आ रहा है? अगर कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये चीज क्या है बेटा? ये इमेज है, ठीक है। अब आप बोलो ये मैग्नीफाई हुआ कि नहीं? जस्ट आंसर फ्रॉम योर कॉमन सेंस, ये मैग्नीफाई हुआ? हुआ है, बड़ा हुआ है तो मैग्नीफाई है। जैसे हम कैमरा में इसको क्या कहते हैं? 1x 2x 3x। 3x मतलब 3 टाइम जूम हुआ है आपका। 500x मतलब 500 बार जूम हो गया है लाइफ साइज फोटो। जैसे अभी तुम लगाते हो ना, क्या वो दिशा पटानी के लाइफ साइज फोटो लगाते हो, ये वैसा ही है, बड़ा वाला, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला फोटो है, ठीक है। और ये कौन सा है सर? ये मेरे बुक के कवर पेज में जो दिशा पटानी का फोटो है वो छोटा वाला है, वो छोटा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीफाई हुआ। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर कोई चीज मैग्नीफाई होता है तो ये रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा, ये वैल्यू कैसा होना चाहिए? मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलो। यू कैन नॉट गिव मी अ फिगर बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू द साइज ऑफ the bigger one and the smaller one, but what does your common sense say? अगर मैं 3 आम 2 बच्चों में बांटूं, अगर मैं 3 आम 2 बच्चों में बांटूं, बेटा ये 3 आम है, 3 आम 2 बच्चों में बांटूं, तो हर
हर बच्चे को बोलो। So हाँ, 3 into सर एक ना यार आधा न्यूटन के बच्चे की तरह सर आंसर। 1.5। हाँ बहुत अच्छा, एक बहुत और अच्छा, आधा। 1.5। इसका तू खा भी रहा है, बैठ के ही खाना, मेरे क्लास में खाना वाना सब अलाउड है। हर बच्चे को कम से कम एक आम मिलेगा कि नहीं? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एक से ज्यादा मिलेगा। दैट मीन्स दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1 और नॉट। इतना ही तो पूछ रहा हूं तुमसे, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। हाँ सर। एग्रीड? और अगर मान लो कि इससे भी, सर आजकल मैं क्या है ना, मैं एकदम अपने वॉलेट में भी एक दिशा पटानी फोटो रखता हूं। ये और छोटा कर दो इसको, ठीक है? अब मान लो ये तुम्हारा इमेज है ना, थोड़ा सटीक नहीं बैठा है, इतना हीरोइन नाम लेता हूं, सब लेता हूं ताकि पढ़ बच्चा, फिर भी नहीं पढ़ता है, ठीक है? ये अब कैसा है जरा देखो तो। नाउ आई विल कॉल इट एज व्हाट, 1 minute, huh? This is also your image and I'm writing this with green color, HI. Now just think of this case. इस केस को देख के सोचो, इस बार मेरा HI ओवर HO क्या होगा? क्या मैग्नीफाई हुआ इस बार? नहीं हुआ ना, छोटा हो गया है। HI over 1 से कम होएगा। ये 1 से कम होएगा। समझ में आया? और अगर 1 हुआ तो उसका मतलब क्या है? मतलब कि मैग्नीफाई या डिमिनिश नहीं हुआ है, सेम। वाह, ऐसे Is नाक equal पकड़ने की प्रथा कितनी सुंदर है ना। हाँ जानवी, is equal to 1. मैं इक्वल टू 1 मतलब मेरा वो दर्दनाक चेहरा जिसका फोटो तुम लगा के सो सकते हो। सर जब भी प्रॉब्लम नहीं करता हूं आप ही दिखते हो, लाइफ साइज। इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ना। 1 का मतलब क्या है? जैसा है वैसा ही है। तो अगर हमें 1 मिला, अगर हमें रेशियो HI ओवर HO का रेशियो अगर 1 मिला, अरे तो लीनियर इक्वेशन लगाओ ना, HI इक्वल टू HO नहीं हो गया? यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। ऐसा कहां दिखने में आता है? ऐसा हमें एट सी दिखने को आता है। याद करो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सब रिलेट करेंगे ना धीरे धीरे। तो क्या ये 3 केस आपको समझ में आया? व्हेन यू मैग्नीफाई देन योर रेशियो इज ऑलवेज मोर देन 1, है ना? हम जब पोस्टर बनाते तो क्या बोलते हैं? हम पोस्टर बनाते वक्त कहते हैं मोर देन 1। सो इन थिएटर, जब आप थिएटर में पठान देख के आए हो, व्हाट्स द मैग्निफिकेशन? लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1? ज्यादा होएगा ना। सर इतना ऑब्वियसली सोचने का ज्यादा। क्या है यार? शाहरुख खान उतना बड़ा दैत्य जैसा है क्या जितना बड़ा स्क्रीन में आता है? एक्चुअली तो तुम्हारी सीट में बैठा हुआ तुम्हारे ही जैसा लगता है ना, उतना ही तो बड़ा होगा वो। स्क्रीन में कितना बड़ा होके आता है, इसका मतलब मैग्नीफाई हुआ। और जब वही चीज तुम मोबाइल में देखते हो, झूमे जो पठान, वहां दीपिका डिमिनिश हो गई है। समझ में आया? रेशियो लेस देन 1। अरे इतना करके बताता हूं फिर भी याद कर बेटा। समझ में आया? लेस देन 1। सिनेमा थिएटर में ग्रेटर देन 1। समझ में आया? और कभी कभी एयरपोर्ट में तुम लेते हो, मैम कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ, वहां इक्वल टू 1। दीपिका एयरपोर्ट में भी तो दिख सकती है ना, वहां इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? अब जरा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। इतना को अभी साइड में रख लेते हैं। लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड। डिड यू गेट इट? लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड। नाउ विल कम बैक टू दैट। नाउ लेट्स कम टू द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, लेकिन आप कंफ्यूज करोगे जब लेंस पढ़ाया जाएगा, आपका गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमेशा याद रखो, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सर बड़ा इजी लग रहा है देखने में, कोई हार्ड तो है ही नहीं। आप पता नहीं क्यों इसको इतना सीरियस क्यों बता रहे हो इसको। ये मिरर फॉर्मूला है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। अभी तो पढ़ाया नहीं, फिर भी बता रहा हूं आपको। जब आप लेंस पढ़ोगे ना इसके नेक्स्ट पार्ट में, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और यही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं एग्जाम में। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको जरा सुंदर करके लिखने के लिए इधर v लिख लो और इधर u लिख लो। ठीक है, समझ में आया? अब ये दो फॉर्मूला में आप बहुत कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, कौन सा प्लस था कौन सा माइनस। तो यहां ले लो एक देसी नुस्खा, जिंदगी भर रहेगा याद। रेडी? मिरर में आता है I और एडिशन में भी आता है I। I का मतलब है बंदर का भाई, और इसको मत भूलना, ये I और ये I। इसका मतलब मिरर में हमेशा होता है एडिशन। लेंस में आता है E और निगेटिव में भी आता है E।
इसका मतलब लेंस में हमेशा होगा नेगेटिव। ये से मैंने अपने क्लास 10 और 9 में याद रखा था। आपको अगर इससे और बेहतरीन कोई तरीका आता है तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। मिरर में हमेशा आई, मिरर में आई, एडिशन में आई, लेंस में ई, नेगेटिव में ई। समझ में आया? क्लियर? सर यू और वी हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होगा ना? हाँ, उसमें आ रहा हूं बेटा। अभी एक मिनट, पहले ये वाला क्लियर हुआ, प्लस और माइनस। इस चीज को हम अभी तक पढ़े नहीं है बेटा, इसको बाद में पढ़ेंगे। सो अभी इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से, अभी हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा हुआ सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी होता है या इमेज डिस्टेंस वी होता है? अति गण्यमान्य व्यक्ति वीआईपी, यानी कि वी से होता है इमेज, आई का इमेज, ऐसे याद रखने का। सो वी अगर इमेज है तो यू ऑब्जेक्ट होगा, सीधी सी बात। डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक? इमेज डिस्टेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? सर मैं कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, मैंने यू को इमेज डिस्टेंस ले लिया, वी को ऑब्जेक्ट। होना ही नहीं है बेटा। सर आपका टेक्निक समझ में ही नहीं आया, क्या करूं सर, आप मेरे हो ही दुश्मन। वीआईपी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वी मतलब आई से इमेज, हो गया? आई से इमेज, so V stands for image distance. If you have some other technique you can do. I used to remember like this. जैसे वो केमिस्ट्री में हमेशा बताता हूँ ना, कैटायन को हमेशा जीसस क्राइस्ट जैसा लिखो तो याद रहेगा, कैटायन प्लस होता है। कैथोड को हमेशा कार्टून नेटवर्क लिखो, कैथोड माने नेगेटिव, एनोड माने आंध्र प्रदेश, एनोड माने पॉजिटिव, ऐसे। या फिर हम लिख सकते हैं डोंट पैनिक, ये आता है कि नहीं? पैनिक, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये भी ये टेक्निक है, जैसे चाहो, ठीक है? चलिए, अगर इतना आप सीख गए हैं तो कुछ और चीजें बताता हूं अभी, ठीक है? इज दिस क्लियर नाउ? सो वी विल बी कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द मिरर फॉर्मूला। आई एम टेकिंग दीज ऑफ। सर एक चीज, मैग्निफिकेशन से हमको कुछ कॉपी करना है ऊपर का? हाँ, मैग्निफिकेशन में आएंगे, अभी इतना तक ही बात किए हैं। ये डायग्राम्स ड्रॉ कर ले। हाँ हाँ, ये दिशा पटानी वाला डायग्राम ना, बिल्कुल करो यार। देखो तुमको देख के कितनी हंस रही है वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करो। पूरा चैप्टर में लड़का उठ के बोला सर मैग्निफिकेशन का डायग्राम ड्रॉ कर लो। कर ले बेटा, मैं कितना खुश हूं कि तुमने ये बात कही, कम से कम, है ना? लेकिन उसमें याद रखो बेटा, जब मैग्नीफाई होता है तब एक से ज्यादा होता है, रेशियो इज मोर देन 1। जब डिमिनिश होता है एक से कम होता है। जानवी मैडम, आर वी फाइन यहां तक? मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है? मिरर फॉर्मूला फाइन। अगर इतना समझ लिया, आप कोई भी प्रॉब्लम गलत कर ही नहीं सकते हो। अभी और भी इसमें बात करना है। प्रॉब्लम करने से पहले बहुत सारा ज्ञान है इसमें भी। आ जाओ, हो गया? आ जाओ। अब मैग्निफिकेशन में इसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैग्निफिकेशन, जब आप प्रॉब्लम्स देखोगे ना, मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं बेटा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला स्पेसिफिकली फॉर मिरर होता है निगेटिव v अपॉन यू। निगेटिव v अपॉन यू, ये फॉर्मूला लिख लो। मिरर के केस में निगेटिव होता है, लेंस के केस में कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज निगेटिव v अपॉन यू, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है? नेगेटिव v, मानो ये भूल गए हम लोग एग्जाम में, इसको भी कैसे डिकोड करते हैं उससे पहले जरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मेट देखते हैं। आपको जब डेटा दिया जाएगा, सॉरी चिल्ड्रन, आपको जब डेटा दिया जाएगा तो आपको ऐसे बताएगा, आपको बताएगा से मैग्निफिकेशन। अब निगेटिव v बाई यू है तो मैग्निफिकेशन कैसा निकल सकता है? मैग्निफिकेशन आपको आ सकता है +2 आ सकता है, और से -2 आया आपको मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? एक बार या तो +2 आया या फिर -2 आया। फॉर्मूला भूल जाइए। +2 कैसे आ सकता है बेटा? सोचो, +2 आने के लिए न्यूमरेटर में भी माइनस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी माइनस होना चाहिए। या तो ये ऑप्शन से आ सकता है, या फिर न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आ सकता है।
बात समझ में आई? एंड मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो हम अभी अभी करके रखे हैं, दैट इज HI अपॉन HO। इसमें कोई साइन नहीं रहता है, जस्ट HI अपॉन HO, ठीक है? अब जरा सोचते हैं कि मैग्निफिकेशन +2 का मतलब क्या है। जरा सोचो, प्लीज ड्रॉप योर पेन्स एंड हैव कंप्लीट आई ऑन द स्क्रीन। मैग्निफिकेशन +2 में आप सोचो, ऊपर क्या रहता है बेटा? ऊपर हमेशा हाइट ऑफ द इमेज रहता है, नीचे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है कि नहीं? राइट। अब आप खुद ही सोचो, इमेज की हाइट नेगेटिव हो सकती है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड हो सकता है ना? पर क्या ऑब्जेक्ट कभी भी इन्वर्टेड हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बोतल दिखाता हूं तो कैसे? ऐसे दिखाता हूं, ऐसे थोड़ी दिखाता हूं, ऐसे नहीं दिखाता हूं ना, ऐसे दिखाता हूं। डू यू गेट मी? इसका मतलब ये जो मेरा ऑप्शन है ये हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इमेज ऑब्जेक्ट हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव। डू यू एग्री और नॉट? ये समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज स्टॉप मी हियर इटसेल्फ। I will clarify it 100 times, but I'll not proceed. But don't दबा के मत रखना अपने अंदर। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है? तो एक और, नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर +2। तो दूसरा एक ऑप्शन क्या हो जाता है +2 के लिए? सर दूसरा +2 का तो एक ही ऑप्शन हो सकता है कि इमेज भी पॉजिटिव हो और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो, तभी जाके मुझे पॉजिटिव मिलेगा, वरना पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता है। क्लियर? Otherwise, because my dear children, this is frozen. You can't change this. This is always positive. Now, in order to get a positive quotient, your numerator has to be positive. You don't have any other option. ये समझ में आएगी नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा केस आपको यूजुअली कहां दिखता है? जरा सोचो, कौन सा मिरर? वही लिपस्टिक वाला मिरर में दिखेगा आपको ये केस। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में एक ही केस होता है हमारा। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास होता है तो इसका इमेज कैसा होता है? इसका इमेज बढ़ के आता है और वो भी इरेक्ट होता है, यहां पे इमेज आता है। ये बच्चा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दिस फॉर्मूला ऑल्सो। जरा देखते रहे। अब बताओ आपका HO क्या है? सर HO तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। आपका HI क्या है? सर HI बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। क्लियर? मतलब इसको तो हम मान्यता दे देते हैं, करेक्ट है। अब जरा देखो, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज U? U मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U नेगेटिव है ऑलवेज। ये भी फ्रोजन है। दिस इज ऑल्सो a frozen quantity. You have no say on this. U is always negative. Agreed? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है मुझे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे कहता है निगेटिव ऑफ V अपॉन U, माने मेरा U का डेटा इसमें नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इस पर्टिकुलर केस में U नेगेटिव आएगा, करेक्ट? अच्छा, V कैसा आ रहा है देखो तो, इस केस में V पॉजिटिव आ रहा है। V इज पॉजिटिव, ठीक ना? उल्टा साइड में इमेज बन रहा है, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव V। इस रेशियो को सॉल्व करे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, है ना? इसका मतलब आवर अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस डेटा। दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव ऑफ V अपॉन U और द रेशियो ऑफ HI अपॉन HO। हमने HI और HO को लेके देखा इस केस में, हमारा मैग्निफिकेशन ताबड़तोड़ ऐसा ही आया। एक और केस लेंगे, घबराओ मत। हमने HI अपॉन HO लेके भी देखा और इसको। तो कभी भी अगर आपको डाउट हो जाता है कि मैग्निफिकेशन क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को अपने मन में हनुमान चालीसा की तरह दौड़ाओ और फिर देखो आपका आंसर ऑटोमेटिक मैच करना शुरू हो जाएगा। मींस इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द फॉर्मूला। क्लियर? तो जरा अपनी जिंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करो और क्या क्या फॉर्मूला सीखा। सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और सर आपने और भी दिमाग खाया, m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू HI/HO। क्या ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब जरा हम ऐसा वाला एक केस देख रहे थे। ये इसको तो छोड़ दिया ना, ये सौतेला भाई को भी तो देखना है ना, इसको भी तो देखना है।
हमने तो सिर्फ +2 देखा। जरा इस चीज को आप जैसे कॉपी करना चाहते हैं कीजिए, और एक 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक ब्रेक लेते हैं। ये समझ में आया बच्चा? कुछ ट्रिक्स भी आपने सीखा। मिरर में होता है आई, एडिशन में होता है आई माने बंदर का भाई, तो आपका क्या होगा? प्लस होगा। अभी मैग्निफिकेशन की कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ, टू रीड मैग्निफिकेशन एंड टू डिकोड द डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन यू आर द चैंपियन इन क्लास 12 ऑल्सो। चलें थोड़ा आगे, -2 को देखें। अब चलिए, अब हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव करके देखना है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है, आ जाओ। हमें चाहिए कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए। पहले हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से देखते हैं, तो कैसा रहेगा बेटा? HO तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो पॉजिटिव फ्रोजन है। इसका मतलब HI क्या होना पड़ेगा? HI को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा एक केस लेते हैं जहां इमेज कैसा आएगा? इन्वर्टेड आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट पे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही है। चलो एक केस लेते हैं, एक ठो केस लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए लेते हैं केस। कैसा केस? सर मिरर बनाइए पहले, ठीक है। 2 चम्मच मिरर ले लीजिए और इसमें 4 चम्मच चीनी मिलाइए, ये हमारा मिरर हो गया। हाँ बोलो। इन्वर्टेड में मैग्नीफाइड इमेज कहाँ पे रखूं? बिटवीन C एंड F रख लेते हैं ना। सर आपको कैसे याद हो जाता है? हमको तो याद ही नहीं होता है, क्या करें, मजबूरी है सर, खेत वेत सब उजड़ गए। बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रीन। एंड हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? बियॉन्ड C बनेगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा केस है। चलो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। ये है हमारा, ओहो, ये है हमारा HO जो कि होता है पॉजिटिव, और ये है हमारा HI जो कि होता है नेगेटिव। तो ये वाला केस तो हमें समझ में आ गया। एंड यू आर गेटिंग अ वैल्यू मोर देन, तो इसको ले लो, इसको 4 ले लो मान लो, और इसको 2 ले लो वैल्यू, तो इसमें आपको वैल्यू आ गया -2। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। वी गॉट दिस थिंग, अंडरस्टूड। Now we'll employ the formula m is also equal to negative of v upon u। चल बच्चा, अब मुझे बताओ u क्या है? सर इस केस में u तो नेगेटिव है, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है उसमें। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, फ्रोजन है ये, फ्रोजन, फ्रोजन माने फ्रोजन पीस, फ्रोजन नहीं, फ्रोजन, फ्रोजन, ठीक है। और v देखो तो बच्चा, v कैसा आया है? v भी सर इस बार नेगेटिव आया है, देखिए ना, यहां तक भी आया। सर ये है u जो कि है नेगेटिव, और सर v भी आया है नेगेटिव, तो डालो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव v, यानी कि अच्छा ये वाला नेगेटिव कौन है? सर ये हमारी ना पैदाइशी प्रॉपर्टी है, दादाजी की संपत्ति, ये वो नेगेटिव है, ठीक है। तो कैसा हो गया? इस नेगेटिव ने इसको काट लिया, अल्टीमेटली आपको आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। फॉर्मूला अभी भी करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा? चलो अब जरा मैग्निफिकेशन को डिकोड करते हैं। सो मैग्निफिकेशन एज अ फॉर्मूला इज नेगेटिव ऑफ v अपॉन u और इज इक्वल टू hi अपॉन ho। whenever you put hi ho, everywhere you will put the algebraic values। okay, so let me go here once again। ये जो फॉर्मूलाज आपने लिखा यहां पे आप प्लीज लिख के रखिए, इनपुट algebraic values या values with their sign। algebraic values मतलब with sign, with sign। आप f का मतलब आप ये मत लिख दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम ऐसे देगा, a concave mirror of focal length 30 centimeter। okay, try and understand what I'm saying children। a concave mirror of focal length 30 centimeter, तो जानवी अगर लिखेगी ना given f equal to 30, बस मिल गया, मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे उसमें। f equal to -30 because you are dealing with a concave mirror। got it? They will tell you a concave mirror, an object is placed 30 centimeter in front of the mirror। तो साहब ने क्या लिखा? u is equal to 30, बस मिल गया, 0 मिलेगा। u is equal to -30। समझ में आया? चलिए इतना क्लियर हुआ। अब आज का लास्ट का लंका कांड सुनिए रामायण का, और ये है डिकोडिंग
डिकोडिंग मैग्निफिकेशन, एक बुक में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ये हमने बनाया। मैग्निफिकेशन डेटा, इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे हमें ऐसे आएगा, m इज इक्वल टू या तो +2 आ सकता है, m इज इक्वल टू -2 आ सकता है, m इक्वल टू +1 आ सकता है, और रुकिए रुकिए रुकिए, ओके हमारे पास आ सकता है m इक्वल टू -1, m इक्वल टू +3/4, मतलब <1 का एक वैल्यू लिया, m इज इक्वल टू -3/4 का वैल्यू लिया। इससे ज्यादा और कोई केस नहीं हो सकता है। पॉजिटिव में 1 से ज्यादा, ये कैसा है बेटा, जरा सोचो, ये है पॉजिटिव में >1, ये है नेगेटिव में, अभी ये सब नहीं लिखेंगे, देखो समझ में नहीं आया, ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। आइए अब फिर से पेन छोड़ दो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप सिर्फ देखिए। मैग्निफिकेशन डेटा हैज 2 items, one is known as sign and one is known as value. For example, m equal to +2, that means plus is the sign and 2 is the value. Have you understood? Okay. Now, this is number 1 and this is number 2. So, understanding for sign. If the sign is positive, it means image is erect. सीधी बात। अभी तो देखा हमने देखा कि अगर साइन पॉजिटिव आता है तो इमेज इरेक्ट होता है। यहां पे हमने देखा ना, ये देखो, ये तो वो केस था, ठीक है, ये वाला केस है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट है। तो इसका दूसरा क्या हो सकता है, अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज क्या है, इज इन्वर्टेड। क्या ये सरल चीज आपके मस्तिष्क में घुसा या आपको टाइट लग रहा है? यहाँ पे इजी हुआ है कि नहीं? Lot of data you are absorbing, children, both boys and girls. So if you decide next 8 days I will do only masti, then this one will be very costly for you in next class. ठीक है? हाँ साहब, कुछ गर्दन उर्दन में इतना दर्द नहीं होता, इसके बाद तूने नेटफ्लिक्स ही देखनी है, सारा इंफॉर्मेशन आता है मेरे को। तो क्या करता है, सीधा सामने आ और पढ़ यहाँ पे। क्लास 2 मिनट नहीं, वो गर्दन में दर्द, ये दर्द, आसमान ढो रहा है जैसे बैठ के। सोता है रात को देर से, पूरी रात टीवी देखता है बैठ के। सारा डेटा है मेरे पास, ठीक है। साइन क्या है, साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट है, साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है। अभी मैंने साइज की बात नहीं की है बेटा, साइज की बात नहीं की है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं इरेक्ट हो या इन्वर्टेड हो, ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ, अब दूसरा डेटा आता है वैल्यू पे। जब हम वैल्यू की बात करेंगे ना, हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को देखेंगे, ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कि अगर m इज इक्वल टू -5 है, नेगेटिव को तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमें सिर्फ 5 वाले डेटा को देखना है, ठीक है। हमें सिर्फ जो हम ये वाले एग्जांपल्स में, सॉरी, ये वाले एग्जांपल्स में आपके साथ करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। we'll concentrate only on the value, nothing more than that, right? Now value कैसा हो सकता है सर? value <1 मतलब diminished, सीधी बात। अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर ये कॉपी में रखने वाला दिशा पटानी का फोटो है, सिंपल है ना। अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है, सर ये हमने बॉम्बे एयरपोर्ट में देखा था दिशा पटानी को, सेम साइज, ठीक है। और अगर वैल्यू, ये सिंपल कॉमन सेंस यार, मैग्निफिकेशन <1 है, सर ये तो हमने पीवीआर में दिशा पटानी को देखा, मैग्नीफाइड। समझ में आया? Isn't it interesting? बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जगह पे हमने साइन को देखा, एक जगह हमने वैल्यू। साइन 2 तरह के हो सकते हैं, प्लस या माइनस। प्लस बोले तो सीधा, माइनस बोले तो उल्टा। वैल्यू कैसा हो सकता है? 1 से छोटा, कॉपी का दिशा पटानी। 1 के बराबर, आंखों के सामने दिशा पटानी। 1 से बड़ा, थिएटर में दिशा पटानी। क्लियर हो गया?
तो बच्चा अभी कैसे पढ़ेंगे, अब ये था पनीर और ये था बटर, दोनों को मिलाओ और करते हैं पनीर बटर मसाला। अभी चलो m इक्वल टू +2, अब कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इमेज सीधा है और 2 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। क्लियर? सीधा दिशा पटानी बहुत बड़ा, पीवीआर थिएटर। m इक्वल टू -2, सर प्रोजेक्टर वाले ने फिल्म उल्टा लोड किया, दिशा पटानी उल्टी आ रही है पर बड़ी दिख रही है। क्लियर हुआ? सर m इक्वल टू +1, ये तो सर हम बॉम्बे एयरपोर्ट में दिशा पटानी को देखे थे। m इक्वल टू -1, सर जब एग्जाम खराब किया तो पापा ने उल्टा टांग के दिशा पटानी से मिलवाया, वो तो सीधी खड़ी थी, हम उसे उल्टा देख रहे थे ऐसे। सेम साइज। m इक्वल टू +3/4, सीधा दिशा पटानी बुक के अंदर का फोटो। और ये क्या, टीचर आते ही हमने छुपा दिया ना तो फोटो को उल्टा कर दिया था, पर छोटा फोटो, इन्वर्टेड। आई थिंक I don't need to explain much more than that. Every case we are seeing the signage and we are seeing the value. The signage tells me whether the object is straight, erect or inverted, and the value tells me if I am more than 1, obviously it's a magnified image. If it's equal to 1, it's as the same size, and it is less than 1. Now children, tell me, when the image is formed at center of curvature, object at center of curvature कैसा बनता था? जहां ऑब्जेक्ट रहता था वहीं पे इमेज बन जाता था। ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे? m इक्वल टू -1 लिखेंगे। माइनस का बोले तो उल्टा, 1 का बोले तो दोनों का साइज बराबर। अगर तन्ने इतना कर लिया ना तो कोई मायके लाल में दम नहीं है तुम्हारा नंबर काटने के लिए। सर तो +1 कब आएगा फिर? +1 होता ही नहीं है, +1 एक केस में भी नहीं होता है। इसलिए तो अब डेटा देख के तुम बोल सकते हो। डेटा जैसे तुमने FIR लिखवाया ना, सर मैं मौका वारदात पे पहुंचा और जिसका कत्ल हुआ उसके यहाँ पे छुरा घुसा हुआ था, खून बह रहा था, हाथ में किताब खुली थी, पेज नंबर था 17-18। पुलिस ने तुम्हारा FIR ही रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि कोई भी किताब में 17-18 पेज नहीं होते हैं, 18-19 होता है, 18-19 होता है, 17-18 जनरली प्रिंट में नहीं रहता है। तो कोर्ट में कहता है योर ऑनर, ये गलत गवाह लाया है और गलत गवाह के लिए आपको मिलता है सजा। तो अभी आप डेटा देख के ही बात कर सकते हो। नाउ टेल मी वन केस, इन कॉन्केव मिरर, okay, I'm going to use your brains now. Is this data ever possible? इमेज सीधा लेकिन छोटा हो ही नहीं सकता है। इमेज सीधा एक ही केस में होता है, लिपस्टिक कॉम्पैक्ट पाउडर वाला, वहां इमेज बड़ा आता है। डेंटिस्ट वाला बड़ा आता है, छोटा नहीं आता है। डेंटिस्ट आपकी दांत को और छोटा देखना चाहेगा क्या? ऐसे ही इतना छोटा है और बड़ा देखेगा उसको। ये केस अगर किसी ने आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया ना, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +3/4, आप बोलो मैम द प्रॉब्लम इज रॉन्ग, इट कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता है। कॉन्केव मिरर कभी भी सीधा छोटा इमेज दे ही नहीं सकता है। अरे करके देख लो यार, 6 केस तो तुमने ही देख लिया है, बताओ किस केस में सीधा में छोटा आया? नहीं आएगा। अच्छा अब देखो कैसे तुम सोच सकते हो, तुम्हारा जैसे तुम लोग एग्जाम के बाद बोलते हैं तेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर ये, मैम ने भी ये बताया, हाँ मेरा तो करेक्ट है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक हाइपोथेटिकल केस देता हूं आपको। मान लो कोई कहता है, बेयर विथ मी फॉर 2 more minutes, आई नो मेरे भी स्विगी का पैकेट खोलना है तो मुझे भी तुमसे ज्यादा जल्दी है, पर बेयर करो। मान लो तुमको कोई कहता है कि एक कॉन्केव मिरर है आपके पास और इसका फोकल लेंथ है सपोज मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो मनी मन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सी का पोजीशन कहां पे है? 30 सेंटीमीटर में इसका सी का पोजीशन है। क्लियर? आपको बोलता है ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 45 सेंटीमीटर में, मतलब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट कहां पे है? बियॉन्ड सी है कि नहीं? सी 30 पे है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब तुम मुझे बोलो इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू, आपको और बाकी देखने की जरूरत नहीं, इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका इमेज कहां पे बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड बनेगा। बस आंसर आ गया। अब अगर तुम्हारे क्लास में कोई लड़का या लड़की कहता है ना, मेरा तो ना साहेब मेरा आंसर 4/3 आया है, तुम बोलो गलत है, तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता 4/3, गलत है, हो ही नहीं सकता है। 4/3 बोले तो 1 से ज्यादा है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये डेटा और ये डेटा को अलग डील करना भाई साहब, ये सिर्फ बताता है आप सीधा टंगे हो या उल्टा, ये बताता है आप बड़े हुए हो या छोटा हुए हो।
सो द रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखो सिर्फ इतना डेटा में मैंने तुम्हारे आंसर को फोरकास्ट कर दिया है। तुम्हारा इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर हमारा इमेज डिस्टेंस 15 से 30 के अंदर होना चाहिए, बिकॉज सी एंड एफ के बीच में होगा ना। ये देखो बियॉन्ड सी का इमेज कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब 15 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो योर जो भी कैलकुलेट करेगा उसका आंसर होना चाहिए नेगेटिव एनीथिंग ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 30। ये आंसर आना चाहिए, इस रेंज में आंसर होना चाहिए। एम की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। अगर तुम्हारे क्लास का कोई टॉपर बच्चा भी ये वाला आंसर नहीं ला रहा है ना, तो बोल देना भैया यू कैन किस योर मार्क्स गुड बाय, बिकॉज़ यू डिडंट गेट दैट मार्क्स करेक्ट, दैट्स रॉन्ग, डजंट हैपन। इतना ही है। लेकिन जितना समझ में आ जाया है 8 दिन के बाद तेने गोल गोल हो जानी है ना, ये सब उड़ जाएगी। सर इस वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा सर। अरे मैंने तो तुम्हें YouTube में लगा के दिया है, तू जाके वहां डिसलाइक कर ले, मेरे ऊपर भड़ास निकाल ले, कमेंट में लिख दे रॉटन टोमेटोज फेंको इस क्लास पे, लेकिन पढ़ ले, है ना। थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या जाता है, 1 घंटा ही तो हमें ईमानदारी दिखानी है, उसके बाद तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डिकोड? तो जरा 1 मिनट का रिवाइंड हो, या आप कॉपी करना चाहोगे कोई डेटा? योर विश। सर ऐसे भी 8 बज गया है, आप ही रिवाइंड करा दो, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बोलो बोलो बोलो। रिकैप कर लो। रिकैप करें? हाँ, लिखेंगे नहीं ना। देखो आलसी, अगर कोई और लिखना चाहता है व्हाई ओनली यू, कोई और लिखना चाहता है तो लिख सकता है। Have you understood? Do you want me to hold the screen and you want to write something, or you want me to recap it again? I have no issues. I love physics. मैं 2 बार पढ़ा सकता हूँ। सर बस क्लास का रिकैप कर दो सर। क्लास का रिकैप कर दें? चलिए, तो आज के एपिसोड में आपने क्या क्या देखा? आज की कहानी शुरू हुई थी सबसे पहले साइन कन्वेंशन के साथ से। साइन कन्वेंशन को याद करने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिएगा, जहां पोल ही बनता है, आपका ओरिजिन पोल बन जाता है। सारे डिस्टेंसेस को पोल से ही नापा जाता है और सारे वर्टिकल डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस से नापा जाता है। अगर आप ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे नेगेटिव होगा, इस साइड जाएंगे पॉजिटिव होगा, इस साइड जाएंगे नेगेटिव। फोकल लेंथ को F से डिनोट किया जाता है। इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट किया जाता है, याद करने के लिए VIP रखिएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पैदाइशी हमेशा नेगेटिव होगा। और ये सारी बातें हो रही है कॉनकेव को लेके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था हम मिरर में कॉनकेव को पढ़ते हैं, लेंस में कॉन्वेक्स को पढ़ते हैं। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इमेज हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा केस हमें सिर्फ दिखेगा किसमें? लिपस्टिक वाले केस में। और ये नेगेटिव हो सकता है, ऐसा रेस्ट ऑल केसेस में। क्लियर? इतना हम सीख चुके हैं। मिरर का फॉर्मूला होता है, मिरर में I, एडिशन में I, 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर? ओके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ v अपॉन u और एल्स hi/ho। जब मैग्निफिकेशन को देखा जाता है तो उसमें एक साइन होती है और एक वैल्यू होती है। साइन प्लस या -2 हो सकता है। प्लस का मतलब होता है कि आपका इमेज इरेक्ट है, नेगेटिव का मतलब है आपका इमेज इन्वर्टेड है। और वैल्यू के 3 रूप हो सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, एक लेस देन 1, एक इक्वल टू 1, एक ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 है तो दिशा पटानी छोटी है, अगर 1 है तो दिशा पटानी हमारे बराबर है ना। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको PVR में देख रहे हैं, काफी बड़ी है ना। इतना ही पढ़ा आपने। और इसके बाद एबल टू डिकोड सम डेटास, कि कैसे हम डिकोड करें that. So what I would suggest you, if you have not done the ray diagrams, please do them again at home and there itself you try to show. इसमें सर ने बोला था मैग्निफिकेशन, अच्छा देखो हमने फोकस पे रखा, इमेज कहां बना? दूर इंफिनिटी में। कैसा है? एनलार्ज्ड है। वैल्यू कैसा आना चाहिए? नेगेटिव में होगा और ऑलमोस्ट इंफिनिटी होगा। बहुत बड़ा इमेज बन रहा है ना। अच्छा, हमने ना दूर यूरेनस का इमेज बनाया, कहां बना? फोकस पे। कैसा है? उल्टा। सर यूरेनस उल्टा? हाँ, यूरेनस उल्टा सीधा क्या गोल है ना, एक ही बात है, उल्टा बना। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, पर यूरेनस इतना बड़ा, हम तो इतना सा देख रहे हैं, इसका मतलब लेस देन 1 होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा,
तो सर ऐसा था, ऐसा बन गया, इसका मतलब निगेटिव पे 1 होगा मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव में 1 हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, और पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 बिल्कुल होता है। लिपस्टिक कॉम्पैक्ट में अच्छी दिख रही हूँ, बिल्कुल, दांत दिख रहा है, हाँ, शेविंग हो रहा है, हाँ। आ गया वो घड़ी जिसका आप करते हैं बड़ा इंतजार कि कब ये क्लास खत्म होगा, ये आदमी जाएगा हमारी जिंदगी से, ठीक है। लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब इसको दर्शिका को पता नहीं ना जीएल का मतलब क्या है। हम क्लास के लास्ट में जीएल बोलते हैं, जीएल का मतलब है गुड लक, और टीचर के लिए होता है गेट लॉस्ट, ठीक है। आर्यमान बाबू सो गए क्या? अच्छा नहीं। कैक्टस का एक छोटा पौधा हमेशा बेटा टेबल पे रखना चाहिए, जब भी नींद आता है ना कैक्टस को प्यार कर लिया करो, इसमें क्या होता है नींद भाग जाता है इससे। कुछ लोग आंख खोल के भी सो सकते हैं सर। नहीं नहीं, कुछ लोग आंख नहीं, हमारे जमाने में ना, अब ये वाला स्क्रीन पे आएगा कि नहीं, ये देख रहे हो, ये हमारे जमाने में ये जो टेबल लाइट होती थी ना, इसके अंदर ग्लास का बल्ब होता था, तो मेरे पापा कहते थे मुझे ये इसको थोड़ा सा पकड़ लेना, गर्म होता है। आजकल तो तुम्हारा बल्ब भी एलईडी है ना, गर्म नहीं होता है, यातना नहीं मिलती है बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा कैक्टस प्लांटेशन गो ग्रीन, यू नो द अर्थ इज ग्रीन, एंड देन यू कैन आल्सो हैव सम प्रिकिंग ऑन योर हैंड्स, खुजली भी होगा, नहीं जाए। चले, स्विगी का पैकेट ठंडा हो रहा है, और मिलेंगे आपको अगले क्लास में।